Good morning, students. Welcome back to class 7th SST class. In today's class, we will be studying the topic ecosystem. And in our previous class, we studied about the various domains of the earth. ठीक है, तो हमने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था दैट देर आर 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ. दे आर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. And in today's class, we will study about the ecosystem. Okay, so let's study about it detail. Living things like plants and animals inhabit many different environments. Living things में plants और animals दोनों आते हैं. जो inhabit मतलब they live in many different environments from the poles to the equator, and various variety of plants and animals are found from poles to the equator, means they are present everywhere. Life can be found underground, और life underground भी possible है, in air, in water and on land. Means life is everywhere. Each ecosystem is formed by the interaction of living organisms with each other and with the physical environment in which they live. तो ecosystem में क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट है, मे बी जैसे कि सॉइल, लैंड एट्सेट्रा. इट कैन बी एज लार्ज एज द रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, लेक्स, रिवर और स्मॉल एज अ pond. Let us talk about the type of ecosystem. Here we are going to study about the pond ecosystem. A pond ecosystem may contain tiny plants such as diatoms, green algae and very small animals such as rotifers and copepods. अगर हम pond ecosystem की बात करें तो उसमें कई tiny means very small plants such as diatoms. What are diatoms? Single celled algae, green algae and very small animals such as rotifers. What is rotifer? Rotifer are microscopic animals, means very small animals, and they are also called as wheel animals. And copepods are very small animals. So these animals are found in the pond ecosystem. Most of the ecosystems are complex and contain thousands of interacting species. जितने भी इकोसिस्टम होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और उसमें कई थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज पाए जाते हैं. These species interact with each other and also with the abiotic environment. और जो ये species होती हैं लिविंग स्पीशीज़ वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, साथ ही साथ abiotic environment. Abiotic environment means non-living environment, maybe land, soil, water, etc. Okay, in every ecosystem there is a perfect balance or equilibrium in the transfer of energy and matter. और चाहे वो कोई इकोसिस्टम हो उसमें परफेक्ट बैलेंस रहता है. किस चीज़ का बैलेंस रहता है? इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर. ओके, ह्यूमन एनवायरनमेंट. It is formed by human beings and their creations such as roads, bridges, etc. and the social, economic, political and other conditions in which they live. अगर human environment की बात करें, it is formed by human beings. ये human beings द्वारा बनाया गया है और उन्हीं का creation है, जैसे कि road, bridges, buildings, etc. और साथ ही साथ उनके social, economic, political conditions के बारे में बताता है जिसमें कि वो रहते हैं. ह्यूमन एनवायरनमेंट इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट. और जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट से क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड होता है. दिस इन्फ्लुएंस डिसाइड्स द लाइफ स्टाइल, ऑक्यूपेशन, ड्रेस, फूड हैबिट्स एंड नेचर ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. और जो ये नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जो अफेक्ट करता है ह्यूमन एनवायरनमेंट को, वो क्या डिसाइड करता है? उनके लाइफ स्टाइल को, उनके ऑक्यूपेशन को, उनके ड्रेस को. ठीक है, सपोज इफ दे आर लिविंग इन ए कोल्डर रीजन दे विल वियर वुलन क्लोथ्स, है ना. फूड हैबिट्स को डिस्क्राइब करता है. एंड द नेचर ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड या अफेक्टेड होता है. अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन हार्मनी विद द नेचुरल सराउंडिंग्स. दे लिव्ड इन सिंपल लाइफ. ठीक है, जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो नेचुरल
सराउंडिंग के साथ बहुत ही हारमोनी के साथ पीसफुल रहते थे। दे लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ, और उनकी लाइफ स्टाइल भी बहुत क्या थी, सिंपल थी। दे कुड फुलफिल देयर बेसिक नीड्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, और वो अपने आस पास अपने नेचर से अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर लेते थे। बेसिक नीड्स क्या होती हैं, जैसे कि हमारी 3 बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो वो तीनों बेसिक नीड्स वो उससे पूरी कर लेते थे। ओके, विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील ट्रांसपोर्टेशन बिकम ईजियर एंड फास्टर, और जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन जो था वो ईजियर हो गया और फास्टर हो गया। लेटर ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड, और फिर उसके बाद जब इन्वेंशन हो गया व्हील का तो ट्रांसपोर्टेशन होने लगा, तो ट्रेड भी फ्लरिश होने लगा और साथ ही साथ कॉमर्स भी डेवलप हो गया। विथ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ह्यूमन बीइंग सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग द डोमिनेटिंग नेचर, और जब ये सारी चीज़ों में तरक्की हो गई और जैसे ही टेक्नोलॉजी और साइंस में एडवांसमेंट हुआ तो ह्यूमन ने क्या करना शुरू कर दिया, नेचर को डोमिनेट करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ओके, अंडरस्टूड। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, अब ह्यूमन का एनवायरनमेंट से कैसा इंटरैक्शन हो रहा है, ठीक है। द फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स ह्यूमन बींग्स विद डिफरेंट मटेरियलिस्टिक नीड्स, तो जो हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट होती है वो ह्यूमन बींग्स को कई सारी मटेरियलिस्टिक मतलब नॉन लिविंग नीड्स को सेटिस्फाई करती है, लाइक फार्मिंग, फिशिंग, forestry and mining still require raw material without which no society can survive or progress। तो अगर हम फार्मिंग की बात करें that depends on plants, फिशिंग की बात करें that depends on fish, और फॉरेस्ट्री की बात करें तो that depends on again forest and mining minerals। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है और इसके बिना कोई भी सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। Human beings and their activities also present the greatest danger to the environment, और human beings और उनकी activities जो हैं वो हमारे environment के लिए ये सबसे बड़ा क्या है, danger है। Why? Because human beings are harming the nature, ठीक है। Since starting of human civilization, people have only used nature for their existence, और अगर हम starting से बात करें जब से human civilization आया है तो हम लोगों ने यानी कि ह्यूमन बींग्स ने नेचर को अपने लिए बस यूज़ किया है। दे एक्सप्लॉइटेड एंड मिस यूज्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और यूज़ करना तो ठीक है बट दे एक्सप्लॉइटेड एंड मिस यूज्ड द नेचर, दस द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट हैज़ बीन डिस्टर्ब। इस कारण जो हमारे नेचर का बैलेंस है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, राइट। When the disturbances made by the human beings in the environment were less, nature could easily repair it, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग सिर्फ अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए नेचर पे डिपेंडेंट था, तो जब डिस्टर्बेंस होती भी थी तो बहुत कम होती थी जिससे कि हमारा नेचर रिपेयर कर लेता था। बट नाउ फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन एट अ फास्टर रेट, लेकिन अब क्या हो रहा है, वी आर कटिंग डाउन द forest day by day, which is leading to deforestation. Industrial development is polluting our environment, और जैसे जैसे हम ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, पोल्यूट कर रही है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अनवाइज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये क्या है, टेक्नोलॉजी का अनवाइज यूज़ है, वाइज यूज़ नहीं है। वाइज यूज़ होता तो हम अपने नेचर को अफेक्ट नहीं करते। Now, a perfect balance between the natural and human environment is a need of the hour। तो अब क्या हो गया है, हमारा environment बहुत ज़्यादा deteriorate हो गया है day by day, it is getting polluted। तो अब हमें ज़रूरत है कि एक हम perfect balance बना के रखें natural और human environment के बीच में। We should understand that human race cannot survive if we do not live in harmony, और अब ये समझना होगा कि ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन रेस कैनॉट सर्वाइव इफ़ वी आर नॉट लिविंग इन हारमनी। अगर हम मिलजुल के नेचर के साथ नहीं रहते हैं देन देयर विल बी इम्बैलेंस इन नेचर एंड वी विल गेट हार्म्ड बाय नेचर। आप देख सकते हैं जो ये सुनामी है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है,
these are all result of the नेचर. हम नेचर को जितना हार्म करते हैं वो हमें भी उतना इफेक्ट करेगी. सो देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द ह्यूमन एंड द environment. Okay, so this was all about the chapter. Read the chapter thoroughly, learn all the key terms of the chapter, and if any doubt, ask me. Hope you understand the topic well. Please like and subscribe my video. Thank you and have a great day ahead.